So we had started last class, that means yesterday, antigen and its type. Okay, we have defined antigen is that substances when enter to a body, it will create antibody. Yeah, it will generate antibody. Not only generate, the second portion is still there. Okay, it will react with the generated antibody, not any other antibody inside your body. Here, then we go for the antigen determinant. Antigen determinant means it is that place on the antigen where antibody bind. At the same time, we discuss the type of epitope. In the type of epitope based on the number, monovalent, multivalent, mono, multi. In multi, there is overlapping, non-overlapping. At the same time, according to the structure, there are three different types. One is conformational, linear, new. Conformational में क्या होता है? If denature them, the antigenicity loss, the antideterminant lost. In linear, what happened? In the denaturation, anywhere the antigenicity not lost, maybe new epitope, maybe if that hidden new epitopes hidden may come to outside. Third one is new antigen determinant, where initially there is no antigen determinant, but proteolytic cleavage, when you cut that amino acid sequences, any end may react as an antideterminant. Then what we discuss about properties of antigen. Four major property. One is molecular size, lowest limit equal to 1000 Dalton. Second one is chemical complexity. That means heteropolymers are more. Third one is your self non-self. That means self molecules are not interacted, but non-self are. At the same time, we discussed about greater phylogenetic distance, greater immunogenic response. Fourth one equal to entry route. Okay. Now, till now, we had completed last class, right? Today, we will discuss about immunogens. Their immunogens, we will start with, we have discussed super antigen as well, right? Okay. Super antigen. These are class of antigen simultaneously bind to MHC class 2 molecule as well as T cell receptor. Now, today we will come to two different topics. One is heptens, then other one is I will discuss later. So, first molecule, heptens. HAPTENS. बच्चे हमेशा गलत करते हैं, क्यों? आओ ना, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर होता है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन करके देखना नहीं है, आप आओगे तो क्यों? और बाय द वे आपका फ्रेंड आपको छोड़ के आप भी उसके पीछे से चले जाते हैं। अरे वाह, गुड। चलो, कोई तो मेरा लेक्चर रुक गया, मेरा पास चॉकलेट नहीं है तो जरूर देता। एनीवे, दिस इज योर अल्केन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CnH2n+2। दिस इज योर भाई, लुक सरप्राइज। 10th में होगा, ये नहीं था 10th में? 11th में आया, 10th में भी आया। मैं 10th से बोला, 10th से शुरू हुआ है। जैसे इंग्लिश मैं 6th क्लास से पढ़ाई शुरू किया, जब मेरा क्लास 6 था तो ABCD हमने पढ़ाई किया, तब तक तो मुड़िया पढ़ रहे थे, पर अभी तो इंग्लिश से शुरू करते हैं इंग्लिश को। तो ये ऐसा हर इस टाइम स्टूडेंट्स पूछा जाता है, ऐसे लिखते हैं ऐसे, फिर केमिस्ट्री का लिख देते हैं कुछ, व्हाट इज हैपन ना, केमिस्ट्री के कुछ ना कुछ लिख के आते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग ENS होता है,
बाय मिस्टेक लिखता ए भी लिख दोगे, पर कंटेंट में जो पढ़ा वो लिखोगे तो मार्क दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, पहले मिस्टेक कर दोगे तो। पर ये हैप्टेंस सोच को मतलब ये सोच को भी मत लिखना, क्योंकि both are the similar pronunciations. Haptens. Okay. Today we will discuss about haptens. अच्छा, फर्स्ट क्लास मतलब कल हमने डिस्कस किए थे हेप्टेन के बारे में. These are the molecules which cannot produce antibody but react with antibody. Right? IL-4 पढ़े थे, which produce antibody but cannot react. कल हमने पढ़ा था ना, दो था अलग, एक एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है. दोनों होगा तो एंटीजन बोलेंगे, नहीं हो दोनों नहीं होगा तो हम इम्यूनोजन बोल देंगे. क्लियर? सो नाउ हेप्टेन इज क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी बट रिएक्ट विथ एंटीबॉडी. क्वेश्चन इज दैट these are small molecule rather than this one which cannot produce antibody. If I'm talking about these are small molecules cannot antibody, that means molecular size definitely below, right, 1000 liter Dalton. Definitely these are the less than 1000 Dalton here. These molecules are less than 1000 Dalton या 1 kD. That's why इनका पास कैपेसिटी है, समझ गए, पर वो नहीं कर रहे ड्यू टू स्मॉलर साइज. बट जिसका पास कैपेसिटी होता है वो जस्ट टाइम का इंतजार करता है, जब टाइम मिलेगा करेगा काम. Am I right? So ये these molecules are when they are smaller molecules, when I will attach with a larger molecule, now they will produce antibody. Got it? These are smaller molecule, they alone cannot produce antibody. When they produce antibody, when they are attached with some larger molecule. Now this larger molecule we will call them carrier. Carrier. किसी का साथ भी, प्रोटीन का साथ हो, एनी मॉलिक्यूल उनको चाहिए, अकेले नहीं कर सकते ड्यू टू स्मॉलर साइज. But when they are attached with some larger molecule, attached with some larger molecule, now this larger molecule is known as carrier molecule. That means heptanes cannot elicit immunoresponse or cannot generate antibodies alone, but when they are attached with the carrier molecule, they can trigger antibody generation. Am I right? लंबी चेन होगा ही नहीं, छोटा मॉलिक्यूल है वो. होगा एक साथ, अगर बहुत सारे हेप्टेन हो गए तो होगा. एक ही है, एक ही का जगह 1000 हेप्टेन आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो हो सकता है, पर होना पॉसिबल नहीं है ना. होगा, वो नहीं मतलब नहीं होंगे, क्योंकि स्मॉलर साइज में से नहीं कर पा रहे. नाउ दिस कैरियर मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल जिसका डाल्टन 1000 से अबव होना ही चाहिए. ऐसा नहीं है ये हेप्टेन है, सपोज ये 500 डाल्टन का है, आपने से कैरियर लगा देंगे 1 डाल्टन, कुछ नहीं करेगा. कैरियर मॉलिक्यूल है, सम ऑफ चेंज करेंगे. क्या चेंज करेंगे डेफिनेशन को? हेप्टेन्स आर स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1000 लिख सकते हो, which cannot elicit immunoresponse, but when they attach to the larger carrier molecule, not only carrier molecule, larger carrier molecule bracket में more than 1000 Dalton, then they can create. ऐसे लिखोगे, ऐसे बोलोगे ना, किसी का बहुत मतलब आपका कंसेप्ट आपको पता है. ऐसा ना आप लिख दोगे these are molecules cannot generate immunoresponse when they attach larger molecule, तो भी मैं आपको मार्क दूंगा, फुल मार्क दूंगा.
समझ रहे क्या बोलना चाहता हूं? तेरा क्वेश्चन होगा हर्ष कहाँ गए थे? चाय पीने गया था, ठीक है, उसको स्कोर दूंगा मैं। पर आने का टाइम होगा, ओनली चाय पी के नहीं आया होगा, लेब गया होगा, लेब से आने का टाइम थक गया होगा, सर मैं लेब में कुछ काम का थक गया था, जल्दी चाय पी के थर्ड फ्लोर से आ रहा हूँ। कन्विंसिंग। अगर ओनली चाय पी के आ रहा था ना, ऐसे कैसे मैं क्लास ले कहीं भी जाए घूम रहा है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? कन्विंसिंग सही से करो। हम जो है सेम क्वेश्चन है, कहाँ गए थे? चाय पीने गया था सर। तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मैं थोड़ी वो क्या कर रहा था क्या मुझे पता है, कुछ भी सोच सकता हूँ मैं। क्लास वाला चाय पीने जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तब बदतमीज नहीं जो भी है, पर बोल सकते हैं सर कुछ सैंपल रह गया था, आके देखा जल्दी मुझे अंदर रखना था इंक्यूबेटर में, रखा, आका सर लगा भूख जोर से चाय पी के आ गया सर, थर्ड फ्लोर से आ रहा हूँ या लेफ्ट से आ रहा हूँ। कन्विंसिंग, हाँ मतलब अच्छा इसका पास वैलिड रीजन है। हर चीज को कन्विंसिंग करो। यू आर मास्टर स्टूडेंट्स, राइट? तो वो एबिलिटी आपको दिखना चाहिए। आपको जो कोई पूछ रहा है, एजुकेशन में खड़ा हूं, मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, बस में खड़ा हूँ, किसको पता नहीं मैं क्या पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा क्या हूँ, पर अपन अपॉर्चुनिटी, कोई मुझे कुछ पूछ रहा है, कहीं कुछ छोड़ रहा है, कहीं गंदा कर रहा है, अपन अपॉर्चुनिटी, आपको पता है एजुकेटेड है, उसको पता है। एजुकेशन डज नॉट मीन एनीथिंग, एजुकेशन आपका बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करेंगे, आपका बातचीत से, आपका काम करने का तरीके से। सो बी अवेयर ऑफ दैट बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया, youth of India. Clear? So now we will discuss this. The what? Now इसको नाम हेप्टन क्यों लिखा गया? दूसरा भी कुछ रख सकते थे, अवनी भी नाम रख सकते थे इसको। हेप्टन नाम क्यों रखे? क्योंकि हेप्टन, क्योंकि मैक्सिमम ग्रीक से आए हैं वर्ड। अब देखो मैक्सिमम वर्ड ग्रीक से, क्यों? कैम ग्रेट रिवॉल्यूशन साइंस का हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। साइंस में जो ग्रेट रिवॉल्यूशन हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर 2 मतलब 1940 के बाद, 39 में खत्म हुआ ना, वहां से पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गए। फैक्ट बता रहा हूं मैं आई एम नॉट इंडिकेटिंग समथिंग, ये फैक्ट है। एक है बिलीव इन गॉड या रिलीजन, दूसरा था बिलीव इन साइंस नो रिलीजन। दो पार्ट हो गया उस टाइम वर्ल्ड। एक तो रिलीजन फॉलो कर रहे थे ग्रुप, एक तो रिलीजन कुछ नहीं, साइंस सब कुछ है। जो ये है पूरा वर्ल्ड उनका कंट्रोल में, अभी उनका चलन जी रहे, और जो ये है अभी भी रिलीजन ये कास्ट में झगड़ा कर रहे हैं, मतलब एशिया का इस तरफ पहुंचे पूरा, ये है एक इंक्लूड रशिया इज, चाइना भी सुधर गया। तो जितने यूरोपियन, ग्रीक, ग्रीस, एथेंस सारे उस तरफ है ना, उसमें देखो कुछ भी साइंस फेनोमेना कुछ भी, सब कुछ उनका पास ही है, और हम अभी भी यहीं पे ही है। ये फैक्ट है, ये बोल नहीं रहा हूँ हम गलत हो सही हो, सही हो गलत हो, मुझे वो नहीं, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन डिबेट ऑन दैट। फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई लव साइंस। मुझे मतलब आपको पता चल गया मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, पर बात है वो नहीं, साइंस इज साइंस। ओके, so the word is coming from Ehrlich. Heptane is coming from Ehrlich, which is a Greek word. In Greek, it is known as heptane. It means to grab or fasten. Okay. Now, the name given by Carl Landsteiner. Okay, by the way, what is time now? Anyway, I have to complete with half an hour. So, the name given by Carl Landsteiner. Blood group. Which है? So, heptanes are related to small molecule, generally less than 1000 Dalton.
that elicit an immunoresponse only when attached to a large carrier molecule such as protein. Clear? Definition clear? Now look at this. Okay, you cannot look that. I will minimize the screen. Acha, yeah. See another RP and my data. Sit. Okay. Look at this one has the molecule. This one can. Now, heptane alone cannot elicit immunoresponse. But when it attaches to carrier molecule, अब मैं इसकी तरह से आपको लग रहा है एक ही carrier अटैच होंगे, ये अपने बहुत सारे अटैच होंगे. ना हेप्टेन अटैच होने के बाद क्या होगा? वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे. इसके लिए लेंस स्टेनर एक एक्सपेरिमेंट किए थे. वो एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किए थे. और एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री. कार्ल लैंडस्टाइनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन हेप्टेन. ओके, उनका एक्सपेरिमेंट ये था, प्रोटीन मॉलिक्यूल ये, दिस इज योर कैरियर क्रॉस हेप्टेन. हमको इतना चीज पता है, नो अबाउट दैट वेयर एन एंटीजन एंटर टू योर बॉडी या एनिमल इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी. क्लियर? तो क्या किए, एक रैबिट लिए. ओके, रैबिट ने क्या किए, हेप्टेन इंजेक्ट किए, नो एंटीबॉडी. क्या है, हमें वो चीज तो पता ही है क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल है. फिर क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है, रैबिट में इंटर किए. इसमें एंटीबॉडी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है ना. एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ कि बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ. फिर क्या किए, प्रोटीन का साथ हेप्टेन ले सेम रैबिट में इंजेक्ट किए. क्या होगा? एंटीबॉडी होगा. क्लियर? समझ गए? उनका एक्सपेरिमेंट यह था कि टेक ए रैबिट, इंजेक्ट हेप्टेन मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर सम टाइम 2 weeks 3 weeks he collected his blood, rabbit blood, and tested whether the antibody production of. He injected only carrier molecule, then he found antibody is there. Then he injected carrier plus heparin, antibody is there. Now question is that ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है, अभी आपने बोले ये तो कैरियर मॉलिक्यूल का होगा, हेप्टेन का कैसे? मुझे पता है आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है ना? आपने ये तो कैरियर मॉलिक्यूल है, हेप्टेन का आप कैसे प्रूव कर सकते हो सर? राइट. अब एक क्वेश्चन है, एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन होगा, ये एंटीबॉडी 3 टाइप के होंगे. 3 टाइप. One antibody is for carrier molecule. Second type is for heparin molecule. Third type. आप बताओ. कैरियर प्लस हेपेटाइटिस वो कैसे होगा? क्योंकि इसका 2 होता है. एक पैलेटम होता है ना, सर्किट ऑफ बाइंड करता है, एक बनेगा एकदम पे
पैरेट ऑफ एक्शन करेगा किसके लिए एपेंड स्पेसिफिक दोनों एपेंड स्पेसिफिक बनेंगे दूसरे में क्या होगा दोनों एपेंड स्पेसिफिक बनेंगे दूसरे में दोनों कैरियर स्पेसिफिक बनेंगे तीसरे में एक एपेंड दोनों के लिए बनेंगे समझे ना नहीं समझे एंटीबॉडी का दो बैलेंस होता है ना दो जो एक जो पैरेट हो एपिटोप के लिए इसका एपिटोप होगा एपिटोप से लाइन करेगा ना दो एंटीबॉडी बनेंगे दोनों जब दोनों एक के लिए बनता है दोनों जो पैराटोप है कैरियर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक बनेंगे एक टाइप दूसरा टाइप दोनों वेक्टर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक बनेंगे तीसरा टाइप इसको हाइब्रिड टाइप एक कैरियर के लिए बनेगा या फिर नहीं बनेगा तो 3 डिफरेंट टाइप के बनेंगे ये था उनका एक्सपेरिमेंट इस ऐसे प्रूव किए थे इसी एंटीबॉडी से प्रूव हो गया एक कैरियर के लिए या फिर नहीं बनाइए क्लियर नाउ लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूड इससे एक्शन आपको पता चल जाएंगे देखो नो एंटीबॉडी कैरियर मॉलिक्यूल एंटीबॉडी वेक्टर प्लस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 3 टाइप different type one is for carrier color is color indicate one is for receptor another is for both carrier receptor clear any doubt कितनी बड़ा करूं सही हाँ बोलो ना भाई सिक्स ईयर प्लस कुछ था 6 साल प्लस कुछ था 6 साल प्लस 6 ईयर प्लस किसका अच्छा मेरी बेटी का मैं लैंड स्टैंडर्ड को पूछ रहा था कितना टाइम लिया एक्सपेरिमेंट को मेरा बेटी का नाम है अश्वती This is from also. This is from एक्चुअली उसका नाम अनन्या है अनन्या एक काम करो ना नहीं हो पा रहा समा पता नहीं जस्ट ए मिनट अभी बड़ी हो गई उस टाइम ये नहीं अभी 2.5 साल से प्लस हो गई हो तो कभी बच्ची होगी उसी टाइम ओके कैरियर वाले ओनली नहीं करेगा ओनली अपने माने तो नहीं करेगा तो तीन कॉलम तीन डिफरेंट है वेक्टर स्पेसिफिक कैरियर स्पेसिफिक बोथ स्पेसिफिक
मेरा साइड का मेरा पता है लेआउट में प्रॉब्लम है इसका और इस लेआउट में मैं तो इसको करूंगा इसमें एनीवे सो वी कैन मूव फॉरवर्ड ओके सो नेक्स्ट इज द a well known example of heptane is euxinol एक यूरिसिनल करके कंपाउंड है आपने कुछ कुछ देखा होगा कुछ ये इसको बोले पॉइजन ईवी क्या बोले इसको पॉइजन ईवी ये प्लांट का ऊपर में कि कुछ प्लांट है ना ऐसे उसका क्या बोलते ऊपर में हेड लाइक स्ट्रक्चर लग जाएगा तो जलन करता है इरिटेशन स्पाइक जैसा होता है तो वेल नोन यूरिसिनल है अभी तक जो स्टडी किया गया है पर some heptanes can induce autoimmune disease as well. We will discuss autoimmune disease in your fourth unit. So third unit. In your third unit, we will discuss autoimmune diseases. Now, leave it that autoimmune disease. Last point में आओ, उसको याद रखो आप, जरूरत है. Some well-known laboratory heptanes are fluorescent, biotin, digoxin, digoxin, aminobenzene, 1-aminobenzoic acid. M-aminobenzoic acid, P-aminobenzoic. उससे benzoic का amino O-M-N-P. Aminobenzoic acid में 3 है O-M-P. याद फिर aminobenzene, fluorescein, digoxin. पर याद रखना है आपको क्योंकि ये हमेशा MCQ में आता है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे टाइम से आ रहा था अभी भी आ रहा है 2-3 नीचे डाल देंगे among which heptane is used for laboratory purpose और आप जब काम इसमें कोई ना कोई करोगे केमिकल को जैसे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड पेप्टोन एगरोस या मैं याद रखना नहीं रखता क्योंकि आपको डेली लाइफ को जरूरत है सही या आपको जरूरत है इम्यूनोलॉजी के लेबोरेटरी में जाओगे तो यार उनका नमक हल्दी मिर्ची पाउडर उनका किचन का यही है वो इसे बात करेंगे फिर वो लैब में पहुंच जाओगे नमक लेके आओ वो क्या होता है बोलेगा आपका पेज कलर कोई होगा आप उससे निकाल जाओ बेंजोइक एसिड लेके आओ तो क्या होता है तुमने खाना नहीं खाया तो नमक पहचानते नहीं हो आप घर में जाओगे नमक लेके आओ मम्मी बोलेगा वो क्या होता है तो उसको लगेगा खाना खाते हो नहीं खाते हो तो सही इम्यूनोलॉजी पढ़ाई किया हाँ ये पता नहीं ऐसा ही है दिस इज ब्लंडर व्हेन यू आर नॉट मेमोराइजिंग द हेप्टेन नेम जहां पे जरूरत है मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा मैं जैसे सेकंड पॉइंट मतलब छोड़ो मैं पढ़ाऊंगा बाद में जस्ट याद रख फॉर इंफॉर्मेशन कुछ हेप्टेन ऑटोइम्यून डिसीज के लिए करते हैं उसमें टर्मिनोलॉजी लिपोस एरिथ्रोमाइट छोड़ दो उसको मैं पढ़ाऊंगा पर यहाँ पे इसको याद रखना है यू हैव टू रिमेंबर नहीं तो आपका रेपुटेशन का सवाल होगा फिर आपका पूछेगा इम्यूनोलॉजी कौन पढ़ा रहा था फिर मेरा पास आएगा फिर वो बाद में इस तुम्हें कौन पढ़ा रहा था लास्ट वही जाके पहुंचता है ना हम कहीं कुछ गलती करते हैं टीचर तक पहुंच जाते लोग एनीवे वो मुझे डर नहीं डर आप पढ़ो मुझे कोई कुछ बोले ना बोले इट डजंट मैटर इट डजंट चेंज मी एनीथिंग बट माय मेन पर्पज इज पढ़ो क्योंकि आई एम फॉलोइंग द फेमस स्टेटमेंट ऑफ अब्दुल कलाम टू क्रिएट कैपेसिटी इन नेशन बिल्डिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स okay so now I will come to the adjuvant that's all about your हेप्टेन मॉलिक्यूल में आपको क्वेश्चन एक आएंगे व्हाट इज हेप्टेन एक मार्क में आएंगे लिख सकते हो नेक्स्ट कॉमनली लेबोरेटरी यूज्ड हेप्टेन मॉलिक्यूल 2 3 4 का नाम याद रखो वो भी आएंगे कार्ल लैंडस्टाइनर का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो वो 4 मार्क में आएंगे क्लियर इसमें एक 4 मार्क का क्वेश्चन है 2-3 एमसीक्यू है एक 1 लाइनर है हम
कार्ल लैंडस्टाइन ने ब्लड ग्रुप का एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, उसको आइडेंटिफाई किए थे, एक्सपेरिमेंट प्रूफ किए थे, तो आइडेंटिफाई किए थे। एक होता है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंशन। होता, देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन फाइंड करना, दैट इज इन्वेंशन, सॉरी डिस्कवरी। ऑलरेडी था तो इसको बताया, और इन्वेंशन इसको पता नहीं था, कोई मॉलिक्यूल डाल देंगे तो उसका अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। एनीवे लिखा होगा वहीं पे, ओके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं लिख दूंगा। या क्या रिपीट करूं कल्याणी, रिपीट क्या करूं कल्याणी? आई डिडंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। या क्वेश्चन इसमें 3 डिफरेंट टाइप के आएंगे। एक आएगा वन लाइनर में हेप्टेन मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज हेप्टेन मॉलिक्यूल। सेकेंड आपको एमसीक्यू में इसमें क्या क्या हेप्टेन यूज होता है लेबोरेटरी में आएंगे। थर्ड हो सकता है कार्ल लैंडस्टाइनर एक्सपेरिमेंट ऑन हेप्टेन मॉलिक्यूल, 4 मार्क में आएंगे। ओके नो नो, हेप्टेन इज अबाउट आपका वही हेप्टेन इज, सॉरी बायोटिन इज हेप्टेन। सेम टाइम नहीं करेंगे हम, सेम टाइप से नहीं करेंगे, एक बार एक्सपेंड हो तो खत्म, हम इंतजार करेंगे। हाँ नया एनिमल ही चाहिए, कैरियर नहीं, एनिमल ही नया चाहिए, क्योंकि उसको ट्रिगर होगा इम्यून रिस्पॉन्स। आप उसको प्रोटीन डालोगे ना, कैरियर डालोगे, उसको डिग्रेड कर देगा वो। हर टाइम नया एनिमल ही चाहिए। रैबिट, अलग रैबिट लेना पड़ेगा आपको। हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, वही पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे चाहिए, क्यों आप 2 क्यों लोगे? क्योंकि 2 अगेंस्ट में आप एंटीबॉडी बनना चाहते हो, 2 हेप्टेन अगेंस्ट में आप एंटीबॉडी बनना चाहते हो। वो बोलेगा मैं 3 करूंगा, कीर्ति बोलेगा मैं 5 करूंगा। सिंपल है। एक कैरियर मॉलिक्यूल आपका हेप्टेन है, रिजल्ट क्या हेप्टेन है, तीनों अलग हेप्टेन अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना है, कैरियर मॉलिक्यूल एक ही लो, हेप्टेन अलग अलग लगा दो उसका, साइमन आपके सारे प्रोडक्शन होंगे। जैसे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, इससे कैरियर मॉलिक्यूल ठीक है पढ़ेंगे हम। क्लियर? नाउ आई विल कम टू adjuvant and I will complete it. It may take extra 5 minutes because you have angle of my 15 minutes. So I will not leave you. Anyway, adjuvant, another molecule we discuss about. समोसा खाना है, समोसा खाना है। मुझे लगा आपको ऐसे पूछा कि आपने उसको क्वेश्चन। हाँ ऑल ओके, तो मुझे बोलो मैं पूछूंगा क्यों, वो तो ओके लग रही है। कल मैं ब्लैक बोर्ड में लिखूंगा कैसे हो, कुछ हॉबी के लिए हो जाएगा, क्योंकि पूछे क्लास में। Anyway, so we will discuss about adjuvant. देखो हेप्टेन मॉलिक्यूल में हमें क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर we are interested elicit some kind of immune response. Okay, so I will take a carrier molecule. Of course, it is larger than 1000, not 1000, 1 lakh. कि कल हमने देखे थे BS ऐसा 1.5 लाख 2 लाख तक होते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होते हैं।
सो उसमें अटैच करूंगा ना। आर्जुमेंट क्या होता है? इट इज ऑल्सो ए बाथरूम वर्ड। हमारे लैटिन में आए तो बाथरूम होंगे, लैटिन वर्ड। इट इज ऑल्सो ए लैटिन वर्ड विच मीन्स हेल्प, हेल्प करेगा। इसका अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। हेप्टेन जैसा नहीं है। हेप्टेन अगेंस्ट, हेप्टेन में डिफरेंस क्या है? हेप्टेन और कैरियर मॉलिक्यूल को साथ डालोगे तो हेप्टेन का अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, कैरियर में बनेगी। पर आर्जुमेंट डालोगे क्या होगा? आर्जुमेंट और कोई मॉलिक्यूल को साथ मिलाकर डालोगे क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेंगे, इसका अगेंस्ट में नहीं बनेंगे। पर जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा बनेंगे, जितना टाइम के लिए बनना था उससे ज्यादा टाइम के लिए बनेंगे। दो टाइप, एक एंटीबॉडी बॉडी में 10 एमजी प्रोडक्शन हो रहा है 10 दिन के लिए, तो इसमें 50 एमजी प्रोडक्शन होंगे 2 महीने। ज्यादा टाइम, प्रोलॉन्ग टाइम, ज्यादा एक्सटेंड और जल्दी। अगर ये 5 दिन में प्रोडक्शन होता है तो 3 जगह मेल करेगा। एक है ईयरली, दूसरा लार्जर अमाउंट, तीसरा प्रोलॉन्ग टाइम। ये हेल्प करेंगे। क्लियर? बात है कि आर्गुमेंट का दोनों डिफरेंस क्या है? आर्गुमेंट का वहां पे हेप्टेन में उसका अगेंस्ट में बन रहा है एंटीबॉडी, और इसका अगेंस्ट में नहीं बनेगी। बनेंगे तो उस मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल के साथ मिला डालोगे। क्लियर? ये कैरियर क्या है? हेप्टेन है, उसको कैरियर को लिख जाते हैं। कैरियर नहीं, एक मॉलिक्यूल है, देयर इज अ मॉलिक्यूल which is power which is able to which is sufficient to generate animal. Okay, suppose thoughts Bishop इसमें निकल जाएगा तो Bishop होगा एंटीबॉडी। नोट टेक अवेलेबल जस्ट एग्जांपल, अगर एक इस क्लास में जा रहा है तो ये Bishop होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? किसकी वजह से हो रहा है? अभी उसका साथ से रहता है तो रिस्टोरेंस ना बढ़ जाएगा और दोस्तों वो सब नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब यही करेगा, बढ़ जाएगा, 24 टाइम करेगा, 3 महीना तक करेगा। जो अकेला जाएगा तो 10 मिनट करके आ जाएगा, अकेला जाएगा तो 10 मिनट करके आ जाएगा, और जाके देखेगा 15 मिनट फिर डिस्टर्ब स्टार्ट करेगा। तो 15 मिनट का डिस्टर्ब होगा, 10 मिनट डिस्टर्ब करेगा, और ओनली एक नोट तो डिस्टर्ब आएगा, और साथ में जाएगा तो 2 मिनट डिस्टर्ब स्टार्ट करेगा, 3 मिनट पूरा देगा ऊपर से नीचे तक, और 3 मिनट तक करेगा। 3 है, एक है स्पीडी, दूसरा लार्जर अमाउंट, दूसरा प्रोलॉन्ग टाइम। ये हेल्प करते हैं। ओके, तीनों चीज में हेल्प करते हैं, जल्दी, बहुत लंबे टाइम। क्लियर? वही तो डालते हैं एंटीजन के साथ, एंटीजन के साथ इसको डालते हैं, इसलिए सारे वैक्सीन में मिला के डालते हैं। सारे वैक्सीन अगर देखा होगा तो वैक्सीन में देखते ना एक्सेस लगता है, देखा होगा आपने। मैं वैक्सीन में देखो यहाँ बिल्कुल बाद में एक्सेस लगता है। वैक्सीन में 90% आर्गुमेंट होते हैं, 10% आपका एंटीजन होता है। क्लियर? सारे वैक्सीन में आर्गुमेंट मिला के डाला जाता है ताकि anyway, so this is Latin word adjuvant means help करना है। Now adjuvants are also produced by antibody from immunized animals, immunized animal में होते हैं। Adjuvants may be added to vaccine to boost immune response and produce more antibodies, longer lasting immunity। अगर more antibody होंगे तो आपका immunity longer lasting होंगे। Most commonly used adjuvants are alum, नाम याद रखो। What is alum? Alum मतलब आपको पता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटेशियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट, दैट इज alum. Aluminum hydroxide paraffinoid. There are 3 different. They are either potassium alum, aluminum sulfate, या aluminum hydroxide या paraffinoid.
ये तीनों से कोई ना कोई मिक्स करके डाला जाता है। अभी अदर नया आगे नए के लिए। नाउ क्लियर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजुवेंट। कौन बताएगा? प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी तो आपको पता है, हेल्प करता है, पर कैसे? ओके, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। चलो दूसरा, अब मुझे बताओ, ये अकेला जा रहा था, डिस्टरबेंस कर रहा था, जाने के बाद 15 मिनट का बाद डिस्टर्ब स्टार्ट कर रहा था, आधा घंटा डिस्टर्ब करके वापस आ जाता था, वो साथ में जाएगा। मतलब आप पूरा 3 दिन तक करते रहोगे, आप 10 मिनट क्यों वापस आ जाओगे वैसे? पहले बताओ, अकेले जाओगे तो 10 मिनट वापस क्यों आ जाओगे? आपको डर लगता है कोई दो चार लगा देगा? सीरियसली अभी तो वापस आ जाओगे, नहीं तो क्यों आओगे? आपको लग रहा है मैं डिस्टर्ब अकेला करूंगा तो कोई आएगा दो चार लगाएगा, इस हिसाब से मैं आ जाता हूँ, पर वो रहेगा तो आपको प्रोटेक्ट करेगा। पहला बात है, लॉन्गर लास्टिंग क्यों होता है? क्योंकि ये फिजिकल प्रोटेक्शन करता है। जो एंटीजन बॉडी में घुसता है ना, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, और एडजुवेंट क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर प्रोटेक्शन होगा, जैसे कोई एंटीजन बॉडी में गया, नॉर्मल बॉडी आपका इट विल टेक 5 to 10 days टू डिग्रेड इट, तो 10 दिन में डिग्रेड हो गया, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बंद। पर ये एडजुवेंट इसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन करके रखेगा, फिजिकल प्रोटेक्शन देगा, तो लॉन्गर लास्टिंग रहेगा। दूसरा, आप 10 मिनट यहां से निकलोगे, 10 मिनट डिस्टेंस स्टार्ट करोगे अकेला जाने से, वो रहेगा तो 2 मिनट में स्टार्ट कर दोगे। कैसे? आपको हेलीकॉप्टर बैठे के साथ छोड़ देगा। दैट मीन्स इट विल ट्रांसलोकेट यू टू द एप्रोप्रिएट पोजीशन, सीधा लेके पहुंचा रहे, हाँ स्टार्ट करो। आप अकेला ढूंढते ढूंढते जाओगे, कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ, डिस्टेंस स्टार्ट करो, वो क्या करेगा? सीधा उठा के जो जल्दी स्टार्ट करो। तो इट विल गाइड यू ट्रांसलोकेट टू द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में जल्दी होता है। ठीक है, ऐसे 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे, देख लो। फर्स्ट वन, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ एंटीजन टू द एप्रोप्रिएट साइट। क्योंकि एंटीजन का साथ मिक्स करके हम डालते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो ज्यादा से ज्यादा, आपका वैक्सीन वो सारे में डालते हैं। इट विल ट्रांसलोकेट एंटीजन टू द लिम्फ नोड्स, याद रखो लिम्फ नोड में जल्दी होता है, जहां पे वहां पे होता है। देन प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन टू द एंटीजन। Now if you provide physical protection to the antigen, that means longer exposure of antigen in the body, which will give you longer lasting of antibody production. Third one, it will help to enhance local reaction, capacity of local reaction. जहां पे रहेगा छोटा है, अकेला ये है, 4 मिलकर जाएंगे तो एरिया में रिएक्शन तो बढ़ेगा ही ना। अकेला एंटीजन इंटर करेगा, उसके अंदर और कुछ मॉलिक्यूल साथ में जाएंगे, तो इट विल हेल्प द लोकल कैपेसिटी ऑफ लोकल रिएक्शन, इट विल इंक्रीज दैट। नाउ रिलीज इंक्लूड साइटोकाइनिन। ये एंटी ये क्या करते हैं? साइटोकाइनिन रिलीज हेल्प करते हैं। नाउ साइटोकाइनिन इज द व्हाट इज द मेन थिंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, ये हेल्प कर साइट रिलीज करने में। नाउ sometimes we believe that it may also increase innate immune response, not only adaptive, because antibody में adaptive innate. So ये generally 4 मार्क में आते हैं। अगर कभी 6 मार्क 4 पॉइंट कोई भी लिख के आओ, मैं मार्क दूंगा, एनी 4 पॉइंट, क्योंकि कोई पॉइंट कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ, जहां पे एक का बाद एक आएगा फ्लो में, फ्लो में आपको लिखना पड़ेगा, पर इनका 4 पॉइंट कोई भी 4 लिखो, आई विल फॉर मार्क। और 6 मार्क का 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 6 मार्क आएगा तो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। व्हाट इज आर्गुमेंट? 1 मार्क में रहेगा, एंड देन प्रॉपर्टीज 5 मार्क। क्लियर? ओनली 4 मार्क में क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट आएंगे। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट।
6 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज आर्गुमेंट एंड प्रॉपर्टीज, क्लियर? व्हाट इज टाइम नाउ? चलो, I will take another 5 minutes. Now we will discuss type of argument. एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था टाइगर। कौन सा बोलेंगे? एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था टाइगर, हम क्या बोलेंगे? एक था टाइगर। नहीं? हाँ या ना? सोचे, हाँ या ना? ना। इसका हाँ भी ना सुनाई देता है। कितने हाँ या ना? हाँ। एक थे साइंटिस्ट का नाम था फ्रांस। क्या नाम था उनका? फ्रांस। उनको कुछ काम धाम नहीं था, ये करते रहते थे। वो आर्गुमेंट बना के दिया आपका सोसाइटी के लिए। ऐसे कुछ करना है लाइफ में तो आपको काफी टाइम तो याद रखा जाएगा। ऐसा कुछ करो, क्योंकि हिमांशु ने बचा लिए हो। अभी आपका जो भी चल रहा है उनके बदौलत कार्ल आइंस्टाइन और ये मार्वलस बात। अगर भगवान कहीं है तो मेरे साथ फेल हो गए, माय ओपिनियन ना। इट इज पर्सनल, कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन। मैं अपने, क्योंकि बहुत काम किए लोगों ने। एनीवे, एक है फ्रेंड्स कंप्लीट आर्गुमेंट। साइंटिस्ट का नाम है, वो एक आर्गुमेंट बनाए थे। उसमें क्या क्या देखो, इनएक्टिवेटेड ड्राइड माइक्रोबैक्टीरिया लिए और मार दिए, ड्राइड कर दिए। इनका साथ वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑयल लिए वाटर में इमल्शन बना दिए। बस उसको कोई भी एंटीजन का इंजेक्ट करोगे तो बनेगा। सेकेंड था, ये कंप्लीट है। इनकम्प्लीट में क्या होता था, उनमें ओनली जो बैक्टीरियल कंपोनेंट हटा दिए थे, ओनली ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल को वाटर में मिला के जो ड्रॉप बनता है ना, उसको ले लिए थे, वो इनकम्प्लीट। उसमें माइक्रोबैक्टीरियम पाउडर डालने के बाद कंप्लीट एडजमेंट हो गया। तीसरा टाइप का था इम्यूनो स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स। छोटा स्पेरिकल बनाए थे, इसको हम बोलते हैं, छोटा छोटा स्पेरिकल बॉल जैसा बनाए थे, केज लाइक स्ट्रक्चर्स, जनरली 40 नैनोमीटर डायमीटर। ओके, one they are example with they are mixed with cholesterol या फॉस्फोलिपिड या कोयले। ओके, कोयले एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, दैट इज कोयलेरिया सापोनेरिया, एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, और प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए थे। दीज आर सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये भी आएंगे टाइप्स ऑफ एडजुवेंट 4 मार्क में। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एडजुवेंट, जस्ट आपको याद रख के उसको लिखना है। 3 पॉइंट हुआ, फ्रेंड्स कंप्लीट, फ्रेंड्स इनकम्प्लीट, देन स्कम। कुछ नहीं, स्कम में केज लाइक स्ट्रक्चर है, 14 डायमीटर का साथ रखा गया है, तो बड़ा कंपाउंड बने, दैट्स ऑल, कुछ नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखोगे एग्जाम्पल। 4 मार्क में 4 पॉइंट लिखना है ना आपको। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में जेल बेस्ड होता है, अगर जेल बेस्ड है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम फॉस्फेट। ऑयल इमल्शन बेस्ड सिंपल, आपने पढ़ा है, फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट, इनकम्प्लीट, दोनों ऑयल बेस्ड, ऑयल इमल्शन बेस्ड। थर्ड वन पार्टिकुलर बेस्ड, जो इसकम में पार्टिकुलर होता है, जो बायोडिग्रेडेबल अलग अलग बीड्स रखा जाता है, जो 14 डायमीटर का होता है, सेपोनिन्स। माइक्रो बेस्ड, समटाइम्स वी कैन टेक ऑल्सो मिरामिल डाइपेप्टाइड्स, माइक्रोब का सेल वाल हम आइसोलेट करके डाल सकते हैं। अदर बायोमोलिक्यूल्स आर आल्सो देयर, इनुलिन, साइटोकाइन्स, फॉस्फोलिपिड्स एटसेट्रा। अगर 2 मार्क में आएंगे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम्पल आएंगे, 2-3 एग्जाम्पल लिखना है। 4 मार्क के क्वेश्चन में एनी वन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो, हो जाएंगे आपकी। क्लियर? So we have completed antigen.
Okay. Kuch question? So we have completed antigen. Next class we will start with the antibody. फ्रेश हो क्या ना, एकदम बहुत एनर्जी चाहिए एंटीबॉडी के लिए। और सभी को, आपका फ्रेंड लोग सारे को बोल देना, अगर आप इम्यून लेक्चर मिस कर रहे हो तो आप लाइफ का बड़ा कंपोनेंट मिस कर रहे हो, बड़ा सा कंपोनेंट लाइफ का, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए समझना जानना। आप भले दूसरा कोई चैप्टर मिस कर दिया, कुछ मिस कर दिया तो ओके, तो उसका साथ आप नहीं होगा तो भी आप इसका जीना है आपको लाइफ भर। Any question who were present online? નિકિતા, તમારી જોડે ક્વેશ્ચન છે બેન? મીરા, ધ્રુવીબેન, અશોકભાઈ? क्लियर सर? मीरा क्लियर? क्लियर, ओके। सो स्प्राइट है ना, स्प्राइट में होता ना क्लियर। Anyway, now I will share the attendance link. Just wait. Oh. અવની શું વાત કરી છે? प्लीज वेट, आई विल शेयर यू इमीडिएट अटेंडेंस शीट भर दो। कौन उसमें नो फीडबैक लिख रहा है? नो फीडबैक एटलीस्ट मत लिखो। नो फीडबैक मतलब आपने कुछ समझा ही नहीं। देखो अभी अटेंडेंस लिंक मिला, व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखो, इज इट वर्किंग? इज इट वर्किंग? इज दैट वर्किंग? ओके, सो देखो आप लिख सकते हो, उसमें कोई समझ में नहीं है इसलिए तो मैं रखा है। ओके, सो हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू। मुझे लगता है मैं किसका 10 मिनट ज्यादा ले लिया।